Hello guys, welcome back to my channel. So it's been long that I did not post any video, but this is a very important video, especially for the people who aspire to give LLM entrance exam this year. So that too, specifically I am concentrating on DU LLM. So for that, let us go about and see what the pattern of the paper is like. पहले पेपर में देर आर लाइक 100 क्वेश्चंस. ठीक है, पहले 175 क्वेश्चंस आते थे, बट सिंस 2017 देर हैज बीन अ चेंज एंड पैटर्न एंड देर आर लाइक 100 क्वेश्चंस इन द पेपर. एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितने साल का LLM ड्यू कराता है. सो देर आर 2 LLMs, 2-year LLM and 3-year LLM. With 2-year LLM you can't practice, with 3-year you can in the code. Now coming to the cutoff. So I analyzed the cutoff which I have here of the last 2 years. So in 2019, unreserved category, it is out, the marks is out of 400. So for unreserved category आपकी cutoff थी 235. For OBC it was 202. For SC it was 180. ST it was 131. EWS it was 200. But this year there has been a slump in the cutoff, and we see that unreserved has 203, OBC has just 81.40, SC has 55.15, ST has 66.67, WS has 82.70, because I think relatively lesser number of people gave the exam. But yeah, so we should aim for the higher cutoff, that is 2019, because this year, probably last year, due to the pandemic and the lockdown and stuff, people did not appear for the exam, but this year they might. So yeah, let's concentrate on the 2019 cutoff. So anyways, now starting with what kind of questions come. So basically, let's discuss the major subjects first which come, and then we'll go towards minor laws. So minor as in terms of the examination, as their percentage in the paper. So now coming to the most important law in every exam, that is constitutional law. So there are around 7-8 questions from constitutional law, which may be from the amendment, which may be from the cases where amendments were challenged, or any landmark Supreme Court judgment, or the appointments, or the constitutional posts, or any article which talks about eligibility, disqualification, impeachment, and such things. Even I read like the past 2-year papers, I went through them. So there were questions from law reports, like law report where death penalty, they talked about death, law commission report where they talked about death penalty and such stuff. And then you can get questions about amendments, as I said, that is very important. So this is what consti would be like, and also the current judgments and the current bills which have been passed, and Supreme Court mein whatever judges are there who has been elevated through High Court and who has been elevated through other processes. So that is quite important. And so this is about constitutional law. And second subject which is important is jurisprudence. So all the schools, positive, historical, natural, analytical, realist, all the schools there who propounded which school, who propounded which theory, the jural correlatives, the jural opposites, Hoffields, and all these things, you have to do it in detail. So the thing is, constitution is still something you can cover, but jurisprudence is something which is very vast, because they can just give you a statement and ask you who said this, and that statement might not be that simple one, it might be pretty complicated. So you need to devote like a lot of time to juris. Then we come to the third thing which is important, that is PIL. So PIL is public international law. So out of that you'll get UN's organs, their accessory bodies and stuff, everything. This year or last year you got the UN military staff committee, Security Council, when can Security Council use force, and such stuffs. So that ICJ, how are the judges elected, how many judges are there, what is the number of judges in ICJ, who, and this is quite important, which Indians they hold a post in any of the branches or organs of UN that might come. And also the various conventions which UN has passed, especially conventions related to environmental law, human rights. So even in human rights, you'll get first generation, second generation, third generation, right? So basic structure, like
basic, when was United Nations Human Right Commission formed, and India mein when was Human Right Commissions formed, who heads the Human Rights Commission, so all of these, so this you can get. Now coming to other acts, criminal law. So criminal law is basically, you know, CRPC, IPC, evidence. तो उसमें से आपको CRPC और एविडेंस करने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप IPC पे ध्यान दीजिए. IPC का आप मतलब जो भी मेजर सेक्शंस हम लॉ में पढ़ते हैं LLB में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, गो डू दैट थॉरली. उसके अलावा कुछ कुछ सेक्शन जैसे रॉबरी, जिनमें हम इतना डिफरेंस उस पर हमें ध्यान नहीं देते, उनसे काफी क्वेश्चन आते हैं. रॉबरी, थेफ्ट, डेकोइटी में डिफरेंस, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ऑल ऑफ दीज. सो इनको इग्नोर नहीं करना है. जो मेजर हमें लगता है सेक्शंस हैं उन सबको हमें याद कर लेना है. सो दैट इज व्हाट, मतलब यू नीड टू बी थॉरो विद योर बेयर एक्ट एंड along with that the leading cases, like which case declared section 303 unconstitutional, such cases you can do that. So ये था हमारा क्रिमिनल लॉ. देन कमिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स. तो ये दोनों मैं साथ में से ले रही हूँ क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स में तो आपके मोस्टली केसेस ही आते हैं कि कौन से केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आई, कौन से में एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई. सो मेजर केसेस या किस केस में जज ने बोला था, सो विच वॉज द जज देयर. सो जो मेजर इंग्लिश केसेस हैं उनके जो इंपॉर्टेंट जजेस हैं वो हमें जब हम केस पढ़ते हैं उसमें लिखे होते हैं. सो या दैट एंड सच प्रिंसिपल्स और ऐसे रेस एस्पा लोक्यूटर और ये सब जो भी हमारे लीगल मैगजिम्स हैं इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दिस इज अबाउट टॉर्ट्स. एंड कॉन्ट्रैक्ट से भी सेम, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सेक्शंस एंड लीडिंग केसेस. सो कहीं से भी आ सकते हैं. हम सोचेंगे कि सिर्फ है ना मेजर सेक्शन 2 से या ऐसे यू नो कोर्शन वगैरह से आएंगे, बट कहीं से भी आ सकते हो. इवन क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट और जो भी द जनरल ऑफर है ना, सब कुछ भी यू कैन गेट एनी क्वेश्चन. सो बी थोरो विद कॉन्ट्रैक्ट. तो उससे आई फॉरगॉट टू टेल यू, जूरिस से आपके आते हैं 5-6 क्वेश्चन, PIL से भी 5-6 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से दोनों को मिलाकर आपके आते हैं 7-8 क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल ऑफ गुड एक्ट्स एंड पार्टनरशिप एक्ट. तो ये दोनों से जो आप जनरली बहुत कम ही पढ़ते हो, इसमें सेल बाय एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कैसे बनती है, लाइक वट एवर द सेक्शंस आर. सो इससे मोस्टली सेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, करंट केसेस पे आते हैं. तो इससे ज्यादा नहीं आते, 3-4 क्वेश्चन आते हैं. सो यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. देन हमारा आ गया IT लॉ. सो IT लॉ में हमें क्या आता है, IT लॉ में जैसे जो मेजर साइबर क्राइम्स हैं उस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो यू नीड टू बी थॉरो विद दैट. द सेक्शंस इन द IT एक्ट, जो हमारा IT एक्ट 2000 है, उसके अलावा जो भी केसेस आए हैं श्रेया सिंगल एंड यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये सारे केसेस भी आप कर लीजिएगा. तो ये IT एक्ट है. उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम टॉर्ट के साथ ही पढ़ते हैं, उससे भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. सो उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और जो इंपॉर्टेंट दो ज्यादा केसेस भी नहीं है उसमें, बट जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा. फिर IPR में किसी भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और वो किसी भी एक्ट से हो सकते हैं, पेटेंट से हो सकते हैं, कॉपीराइट एक्ट से हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट से हो सकते हैं. सो यू नीड टू हैव अ जनरल आइडिया कि किस एक्ट में क्या है. तो ये फिर हम आते हैं फैमिली लॉ. फैमिली लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी हमने मतलब लास्ट 2 ईयर में मैंने जब एनालाइज किया तो उसमें हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी क्वेश्चन थे कि कौन सा क्लास 1 एयर है, कौन सा क्लास 2 एयर है, या फिर विमेन वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 15 उसके बारे में काफी क्वेश्चंस हैं. सो ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लो और केसेस जो इंपॉर्टेंट है जैसे डिवोर्स का जो केस हो गया, ये ऐसे जो भी केसेस लैंडमार्क है. मुस्लिम लॉ में कंपेरेटिवली देयर इज लाइक कन्फाइंड है मुस्लिम लॉ, मतलब क्योंकि इतने हमारे उसके स्टैट्यूट्स नहीं है, बट हाँ कस्टमरी इद्दत कितना होता है, किस में कितना इद्दत ऑब्जर्व होता है, ट्रिपल तलाक के बारे में आ सकता है, एनीथिंग विच इज मेंटेनेंस का कैसे मतलब डेवलप हुआ था लॉ. सो यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट. नाउ वी कम टू कंपनी लॉ. सो कंपनी लॉ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है. सो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या क्या प्रोविजंस है कंपनी लॉ के उनसे आता है, और लिफ्टिंग द वेल थ्योरी और ये सब इनसे आ सकता है. सो हाँ आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. उसके अलावा मेडिकल नेग्लिजेंस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो भी है मतलब ये जो माइनर एक्ट्स हैं वो तो आप देखिए जैसे 5-6 क्वेश्चन तो किसी भी एक्ट से आ सकते हैं, बिकॉज बेसिकली द सिलेबस इज द एंटायर थिंग यू हैव स्टडीड इन योर LLB एक्सेप्ट द प्रोसीजरल लॉज. उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, CRPC, CPC एंड एविडेंस से नहीं आते हैं,
बट बाकी हर लॉ से क्वेश्चन आता है, सो दे रोटेट द लॉज. बट जो इंपॉर्टेंट लॉज जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया. उसके अलावा 5-6 क्वेश्चन एकदम करंट लीगल अफेयर से आते हैं, कौन सी कमेटी बनी है, कौन से लॉज पास हुए हैं, कौन सा बिल आया है और कौन सा बिल रह गया, और किस बजट में और या फिर किस चीज में पीएम ने ये बोला, और ये सब. तो ये काफी आप थोड़ा करंट अफेयर, इफ यू हैव अ टच and if you have you need to touch up current affairs for that. तो ये मैंने आपको बताया what the paper is like. Now how to prepare is जिस हिसाब से क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से आप मैक्सिमम MCQs करिए. जैसे जूरिस में आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है तो आप कहीं टेलीग्राम या किसी भी जगह से जूरिस के नोट्स ले लीजिए. अगर आपका बुक है या कोई भी टेक्स्ट बुक है उससे आप पढ़ लीजिए. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो छोटे नोट्स मिलते हैं टेलीग्राम पे और कई जगह पे मिलते हैं वो आप पढ़ के इसके मैक्सिमम MCQs कीजिए. तो आप एक टेक्स्ट बुक तो ले ही लीजिए जो LLM एंट्रेंस की आती है. उसमें करीबन हर सब्जेक्ट के 700-800 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कॉन्स्टी, जूरिस और PIL, IPC, कॉन्ट्रैक्ट के. तो आप सारे अटेम्प्ट कीजिए. व्हेन यू आर डन विद दैट साथ साथ आप अपना ना कैचअप की एक बुक आती है, नॉट अ पेड प्रमोशन बट मैंने उससे काफी यूजफुल बुक है एंड आई थिंक आई हैव इट हियर. So this is the catch-up का book. It has everything. It has meetings, conferences, UN international years, international news, miscellaneous news. So it has everything. So this is the latest version. You can buy this. You'll get it on Amazon or you can purchase it from Dinkar Bhaiya who sits outside law faculty. So this and one LLM textbook, do that. Once you are done with it, then आप अपना क्या है past year paper कीजिए. And the more you practice MCQs, the more efficiently you can attempt the paper. क्योंकि हमें थ्योरी आती है कई बार बट हमें कई बार उसको MCQ सॉल्व करने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है. So yeah, do that. So I think my video is of help. If you need any more suggestions or anything, you can comment down below and I'll just reply back to you. And all the best for your exam. I hope you get through and with flying colors. And yeah.